So students, as we are discussing the important factors that are responsible in genetic engineering, so we have discussed what are plasmid, why they are present in bacterial cells, उनका क्या काम है बैक्टीरियल सेल में, क्यों बैक्टीरिया को किस तरह से वो बेनिफिशियल फीचर्स प्रोवाइड करे. देन वी हैव डिस्कस्ड what are restriction enzyme, the enzyme that cut the DNA at specific sequence, एक specific site पर ही जो cut करते हैं. We will do restriction enzyme and their types in detail in our next video. Today I am just going to tell you that where the restriction enzyme and these plasmids are used and what is specifically gene cloning. Alright students, so till now in our last lecture we have discussed what are plasmids. They are extra chromosomal circular DNA. We can also use them as cloning vector. Alright. After this video you will come to know that what is cloning and why we are called this plasmid as a cloning vector. Then we have discussed restriction enzymes. Restriction enzymes, the enzyme that specifically cut the DNA at a specific sequence only. And we have also discussed that this plasmid, the term plasmid is given by, this term is given by the scientist Lederberg, and the restriction enzymes were discovered by Arbour, Smith and Nathans. Three scientists that are important for need also, that who discovered the restriction enzyme, discovery done by these three scientists. So students, as we have discussed that these plasmids present in bacterial cell, they provide some beneficial character, and the restriction enzyme present in bacterial cell, they are acting as a self defense mechanism in case of bacteria. बैक्टीरिया को फेज डीएनए के इन्फेक्शन से बचाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और अगर हम स्टूडेंट देखें, now we have more than 900 types of this restriction enzymes have been discovered. 900 types has been discovered, and they are isolated from 230 strains. 230 you can say species of different bacteria. Different restriction enzymes are present in different bacterial cell, like EcoR1 is present in E. coli. Also different restriction enzymes are there. We will discuss them in detail. Today we have to discuss what is gene cloning and how these plasmid and restriction enzymes are useful for them. Alright, like if we want a multiple copy of you can say of a page, अगर हमें एक पेज की मल्टीपल कॉपी चाहिए तो व्हाट विल वी डू, हम उसको जीरोक्स कॉपी करवाएंगे, उस हमारे पास सेम पेज की मल्टीपल कॉपीज जो है आ जाएंगे, हमारे पास सेम डाटा मल्टीपल फॉर्म्स में हमारे पास आ जाएगा. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जीन है जो इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन जीन है, यू ऑल नो दैट देयर आर डायबिटिक पेशेंट्स, सम आर हैविंग इंसुलिन gene is not working properly, or you can say insulin gene is defected. So in that case अगर हम जीन थेरेपी से वो इंसुलिन का जीन वहाँ से जो डिफेक्टेड जीन है उसको निकाल करके वहाँ सही जीन डाल दें, या अगर जीन प्रेजेंट ही नहीं है तो उधर नया जीन डाल दें, एंड वी कैन प्रोड्यूस दिस इंसुलिन एट अ लार्ज अमाउंट, सो दैट वी आर रिक्वायर, हमें क्या चाहिए उस जीन, उसके लिए इंसुलिन के मल्टीपल जीन्स की कॉपी चाहिए, एंड वी कैन मल्टीप्लाई दिस जीन in a bacterial cell. That is the main use of this biotechnology, as we have discussed that it is the use of living organism or their products for our beneficial use. So today we will discuss what is gene cloning. Gene cloning, एक जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने की प्रोसेस को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, जीन क्लोनिंग. सो देखिए, इफ वी हैव अ बैक्टीरियल सेल, अगर हमारे पास ये एक बैक्टीरियल सेल है, दिस इज ए बैक्टीरियल सेल, और इसके अंदर आपको पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स. दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड. दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जिनके पास ओराइसाइट होती है. दे कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इन अनदर सेल, होस्ट सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन जीन क्लोनिंग प्लाज्मिड विल बी आइसोलेटेड. प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, ऑलराइट, प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया, जैसे डीएनए आइसोलेशन करते हैं सिमिलर ही प्रोसेस प्लाज्मिड आइसोलेशन का होता है. कुछ स्टेप्स डिफरेंट होते हैं. वी विल डू दैट ऑल्सो इन डिटेल, हाउ डीएनए आइसोलेशन प्रोसेस इज डन, व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड.
ओके, सो प्लाज्मिड आइसोलेट किया, प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से बाहर निकाला एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उससे हमने एक साइट पे, स्पेसिफिक साइट पे कट किया। क्या होगा, स्पेसिफिक साइट पे कट करेंगे तो दिस प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर विल बी ओपन, ये ओपन हो जाएगा। अब हम कुछ जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, से वी वांट से दिस इज इंसुलिन जीन। मान लीजिए हमारे पास ये इंसुलिन जीन है और हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो वी विल इंसर्ट दिस इंसुलिन जीन हेयर इन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। हमने यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, जिसको केमिकल नाइफ भी कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से स्पेसिफिक डिफरेंट प्लाज्मिड्स के लिए डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होंगे स्टूडेंट। सो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से प्लाज्मिड को ओपन किया और यहाँ हमने अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया। इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ इंसुलिन जीन हियर। डिजायर्ड जीन हमने इसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। अब हमें पता है कि प्लाज्मिड कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सकता है क्योंकि उसके पास ओराई साइट है। तो अब हम इस प्लाज्मिड को डाल देंगे होस्ट सेल में, यानी कि जिस सेल से हमने उसको निकाला है या उससे रिलेटेड सेल जिसमें ये मल्टीप्लाई कर सके, तो हमने इसको कहाँ डाल दिया, अगेन इंसर्टेड और इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल। जिस सेल के अंदर हम प्लाज्मिड को मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम कहेंगे होस्ट सेल। तो स्टूडेंट्स, हमने अब इस प्लाज्मिड के अंदर, जिसके अंदर एक जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर दो डिफरेंट रीजन का, फॉर एग्जाम्पल दिस इंसुलिन जीन बिलोंग्स टू ह्यूमन एंड दिस प्लाज्मिड बिलोंग्स टू बैक्टीरियल सेल। तो दो अलग सोर्सेज के डीएनए को हमने ज्वाइन किया है। अब आप पूछेंगे कि हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, मॉलिक्यूलर सीजर भी उसको बोलते हैं, ये ज्वाइन किसकी हेल्प से किया, तो ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ एक एंजाइम यूज हुआ है, लाइगेज एंजाइम helps to join the DNA fragments को ज्वाइन, तो हमने ज्वाइन किया लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट एंजाइम। सो अब हमारे पास ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड है, हम इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं स्टूडेंट। वन इंपॉर्टेंट नेम इज ऑल्सो गिवन हियर, काइमेरिक डीएनए। Sometime this question is asked, what do you mean by chimeric DNA? So the recombinant DNA is also known as chimeric DNA. So now we have a recombinant plasmid, you can say recombinant DNA, you can say, that have our gene of interest. Now we have inserted this recombinant DNA, this recombinant plasmid into a host cell. अब हमने इसको एक होस्ट, क्रोमोसोमल डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर, और हमने अपना प्लाज्मिड जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। जिसके अंदर डाला है हम उसे कहेंगे होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, ये प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा, प्लाज्मिड अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और साथ में हमारा जो इंसुलिन का जीन हमने इंसर्ट किया है उसकी भी मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी। एंड अगर हम इस बैक्टीरियल सेल को कल्चर करेंगे, कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे, न्यूट्रिएंट कल्चर के अंदर, हम कल्चर मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट, बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो करने के लिए हम क्या यूज करें, न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम। ऑलराइट, कल्चर मीडियम के अंदर बैक्टीरिया जब भी ग्रो करता है बेटा, कॉलोनीज की फॉर्म में ग्रो करता है, तो हमें क्या मिल जाएंगी, बैक्टीरियल कॉलोनीज that having recombinant DNA, recombinant DNA। अब एक बात बताती हूँ स्टूडेंट्स आपको, हमें पता है जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा, दिस इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। इसको जीन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, जीन एक्सप्रेशन, और इसे सेंट्रल डॉग्मा भी हम बोलते हैं, जो कि क्रिक ने दिया था, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर
बायोलॉजी, जो कि क्रिक ने दिया था। इसे जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो अब देखिए हमने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डाला है, इंसुलिन का जीन, क्या होगा, उससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। इंसुलिन इज बेसिकली अ हार्मोन दैट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, प्रोटीन नेचर का एक हार्मोन है। तो वी कैन गेट मल्टीपल कॉपीज। तो स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह से हम अपना इंसुलिन की मल्टीपल कॉपीज यहाँ बना सकते हैं और हमें इंसुलिन एज अ प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा। हमें ये बैक्टीरियल सेल को हम ग्रो करेंगे बायोरिएक्टर्स के अंदर। जैसे हम घर में कर्ड अगर बना रहे हैं तो उसे हम एक बाउल में या छोटी, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे कुछ भी बना रहे हैं तो वी कैन डू दैट इन लार्ज वेसल्स दैट आर कॉल्ड बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स के अंदर ये प्रोसेस होगी एंड ऑन अ लार्ज स्केल वी कैन फॉर्म दिस इंसुलिन। एंड यू ऑल नो दैट हाउ डायबिटिक पेशेंट आर, यू कैन से this technology act as a boon for diabetic patient। अगर इस तरीके से, इतने इजी तरीके से अगर इंसुलिन अगर अवेलेबल हो तो हाउ इट इज, यू कैन से एक्ट एज अ बून फॉर, एक वरदान की तरह जो है इंसुलिन पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट के लिए काम आएगा। क्योंकि स्टूडेंट जब तक ये जीन क्लोनिंग, तो मल्टीपल कॉपीज हमारे पास जीन की आ गई, इसको हम जीन क्लोनिंग बोलते हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है यहाँ पर इंसुलिन, इसको हम जो है रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें हमने अपने हिसाब से प्लाज्मिड को चेंज किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो ऑल दैट प्रोसेस as we have cloned a gene, that's why this is called gene cloning process. But this gene cloning process come under category of genetic engineering. We are changing the DNA, all right, and this is also called as recombinant DNA is forming, तो हम इसको recombinant DNA टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अभी आपने देखा, क्योंकि पहले जब इंसुलिन अगर हम बात करें, जब नहीं थी, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं थी, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट? उस समय में किसी और एनिमल की बॉडी से, फॉर एग्जांपल पिग की बॉडी से या स्लॉटर हाउस में जो एनिमल्स होते थे उनसे इंसुलिन जो है आइसोलेट करके पेशेंट्स को दिया। सो सम हैविंग सम, लेकिन सब पीपल हैव एथिकल इश्यूज कि व्हाई वी शुड यूज द इंसुलिन फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। और कई बार कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी थी जो कि दूसरे एनिमल की बॉडी का इंसुलिन जो है सूटेबल नहीं था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से बैक्टीरियल सेल को ग्रो करना कितना इजी है। दे डोंट रिक्वायर एनी लार्ज स्पेस, उनको हम बायोरिएक्टर में और लार्ज स्केल पे बैक्टीरियल सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, इजिली न्यूट्रिएंट मीडियम में हम ग्रो कर सकते हैं। और किस तरीके से ना केवल हमारा इंसुलिन की अगर हम बात करें, इसके अलावा और भी एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास या वैक्सीन्स हैं, तो हम बहुत सारी तरह के बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस जीन क्लोनिंग, टू फॉर्म अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डिजायर्ड जीन। अ डिजायर्ड जीन मे बी ऑफ insulin, may be of any antibiotic resistant gene, so whatever may be. Alright students, so this is the basic idea of gene cloning. So we, in our two lectures, in our last lecture we have discussed plasmids and then we have discussed restriction enzyme, and now I have given you some idea of gene cloning. As the recombinant DNA is formed here, that's why this is called recombinant DNA technology, and we are changing the chemistry of, यू कैन से DNA RNA, हम DNA RNA लेवल पर यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। वी आर चेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक। I hope you have got some basic idea that what is biotechnology, what is genetic engineering, why we are doing this, what are plasmids. Alright students, so we will do some more detail in our next lectures. Thank you students.